After long time. Yes, sir. After long Yes, time. sir. Yeah. Then Yes, Mike. sir. Okay. So after joining, hmm, I need to admit continuously. Okay. So tell me, what do you feel about online lectures? Anyone? They are interesting. Something is better than nothing. Something is better than nothing. Great, 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 great. Okay. Suwan. Yeah. I'm a one Yes, or sir. Suwan? So, Okay. Suwan. Okay. Okay. So you just give me just one feedback. It is better in online or offline? Online. offline, sir. Offline, Offline. 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 Offline Offline, or Why? sir. Offline. Offline. Better. Why? Offline. Why? Offline. Offline, sir. Offline. Offline, Why? offline. Offline, sir. What is the benefit in offline? Offline. What is the Sir, the benefit I'm asking? concentration level is more in offline classes, and the interaction between the students and the teacher is more. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, Absolutely. definitely, definitely. Any other benefit? Any other benefit? Just whatever. We are Learning just with Masti. yeah, yeah. Okay. So one thing I want to ask: do you feel this engineering physics is important for engineering? Yes, sir. Yes. Why? If yes, why? So it's basically the concepts that require in the future use. If you're going for aeronautics, if you're going, it is basically required everywhere. Everywhere, yes. Because whatever we are learning, that is on the basis of physics. That's why we can say that engineering physics is most important subject. Most important subject. Basic things are depends upon the physics laws. Every physics law is important for engineering physics. That's what this engineering physics is most important subject. What you learn in your 12th? 12th में आपने क्या क्या पढ़ा था? Yes, remember something? 11th in 11th, 12th, what you learn? No one is remember? Circular motion, Say rotational dynamics, electrodynamics, rotational Newtonian friction, mechanics, Newton's laws of motion, Gravitation. vector, Gravitation, Electrostatics. electrosets, yeah, electrostatics, electrical, optics, all these magnetic things effect, we learn. Gravitation. Gravitation, great, 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 Circular great, great, motion. great. magnetics, magnetism. Elasticity. Magnetics, magnetism, yes. Elasticity, electricity. Okay, any other? Semiconductor, sir. Semiconductor. Okay, lens, what do you feel? Yeah, lens, lens. Lens, that means your optic, optics. Yes, right, optics. So now we'll think what is we are having in our engineering physics. Okay, engineering physics may आप क्या क्या करना है? Why it is required? Okay, why it is required? So, are you getting the screen? Yes, Yes, sir. yes, yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. you are getting the engineering physics screen. Okay, your course is FEC 102. Okay, this is the course outline. What is the course outline? That is engineering physics, is theory lectures. We are having 2 theory lectures per week. Credit assigned that your theory paper is 2. And in the test, engineering exam scheme किस तरह से आपको मिलेगी? That is for test 1, you are going to observe this 15 marks exam. For test 2, 15 marks. And for your test both having average 15, and for your total average is for 6, 15 का एवरेज होगा और एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगी आपकी 60 मार्क की होगी. ओके, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगी. नाउ विल सी व्हाट आर द मॉडल्स. Okay, what are the models? Those are available
in your engineering physics. That is the first one is the quantum physics. Have you learned about this one? क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में कि आपके क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? Yes, sir. Even हमने 12th में पढ़ा है. Yes, yes, yes. Quantum physics, matter and ड्यूअल form नेचर of ऑफ light. रेडिएशन. यस, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या सुना है तुमने? What is this dual nature of Matter or radiation? wave form of light. Okay. So do you think where we require this quantum physics in engineering? Your belongs to which branch? CND division? IT. IT and mechanical. IT And mechanical. Or Civil. Sir, civil. IT, mechanical, civil. Chemical, also chemical. Chemical, sir. Yeah, chemical. And EXTC as well. Okay. First, EXTC as well. Very good. So, where we require this quantum physics for chemical engineering? Do you require? Yes, chemical engineering students. Hello? Anyone? Yes, Do you sir. require- So in Yes? chemical engineering, we are basically studying at the very molecular level that what happens in the molecular processes and all that. So quantum physics deals with the same thing, and Yeah, we are also will be studying the same thing from the second year precisely. So they are totally, yeah. And what do you think about the civil students? Civil student, do you require this one? Civil student, anyone? Yes, sir. Where? Where we require this quantum physics? Yes? No one don't know about this one key where we required this quantum physics. Civil engineering. You are reading the Sir? names. Yes. Sir, Yes. to understand the nature of the different material used. Yeah, material used. Which material we need to use? You know, you are constructing the bridge. Yes, definitely. You are constructing the bridge, and what they are measuring their phase velocity, group velocity, wave function, physical interpretation of wave function, Heisenberg's uncertainty principle, all these things. Where we require, we need, if you want to know कि what type of structure we are constructing there. Okay, स्ट्रक्चर आप किस तरह से ले रहे हो, उस स्ट्रक्चर्स में वेव्स किस तरह से आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन मिलते हैं. आपने बहुत बार ब्रिजेस पर एक देखा होगा, लिखा हुआ मेंशन किया हुआ देखा होगा आपने कि ब्रिजेस पर एक पॉइंट मेंशन होता है कि ब्रिज आते ही स्पीड कम करो, ये मेंशन किया होता है. देखा है आपने कभी? एक स्पीड लिमिट वहां पर मेंशन की होती है. व्हाई दे आर मेंशनिंग द स्पीड लिमिट देयर? एनीवन? हेलो? अगर वो स्पीड से ज्यादा हाँ, स्पीड से ज्यादा चलेगा. हिंदी, मराठी, व्हाट योर लैंग्वेज यू वांट टू यूज, यू यूज लैंग्वेज एंड जस्ट वी वांट टू शेयर आवर व्यूज. ओके, वो आई ब्रिज डोंट वांट ओनली वन. यस, कोलैप्स होने का डर रहेगा ना. यस, कोलैप्स होने का डर रहेगा. क्यों? अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर वहां पर क्या जाएगा, अगर ट्रक वहां से बहुत फास्ट स्पीड से जाएगा तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली डेवलप सम हाई फ्रीक्वेंसी वेव फंक्शन. और उसमें जो क्वांटम का स्ट्रक्चर रहेगा, क्वांटम का स्ट्रक्चर मतलब आप क्या कर रहे हैं? यू आर यूजिंग द सीमेंट, यू आर यूजिंग द सैंड, you are using such type of material, and what happens, how much they are able to absorb that energy. If they are able to absorb that energy maximally, if they are not able to absorb this energy maximally, what happens? That bridge may collapse. That we need to think, and that's why we need to learn this. Civil students, remember this one. IT students, any IT student is there? Yes, sir. Yes, where we need this quantum physics. कहाँ पर एप्लीकेशन देखा है आप लोगों ने इसका, क्वांटम फिजिक्स का? No. रेडिएशन आपने देखा है? फोटो इलेक्ट्रिक वेव,
इफेक्ट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल देखा होगा कहीं ना कहीं पर, याद करो। आईटी स्टूडेंट, यस, कहाँ पर यूज करते हैं, कुछ पता है इसको? सर क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए। वेरी गुड। क्वांटम कंप्यूटर बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप अभी डेवलप हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटर इज डेवलपिंग राइट नाउ, बट वेर यू आर ऑब्जर्विंग दिस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन नहीं पता आप लोगों को? देखिए, याद रखिए, आप जो सीडी प्लेयर यूज करते हो, यू आर यूजिंग द सीडी प्लेयर, Yes, sir. सीडी राइटर, सीडी रीडर, yes, what they are using there, what they are using there for writing CD and for reading CD, for writing DVD and writing CD, what they are using, कुछ पता है आपको? Yes, anyone? मूव हार्ड डिस्क कुछ ड्राइव पता के है अंदर क्या? मूविंग क्या पार्ट्स use रहते हैं करते ना? हैं? हार्ड डिस्क पार्ट में मूविंग पार्ट्स रहती है डेफिनेटली, मगर उसको अगर रन करना है क्या करते हैं? सीडी राइटर होता है। ये सीडी राइटर क्या करता है? किससे आप सीडी पर किस तरह से लिखते हैं आप सीडी से? सीडी पर राइटिंग किस तरह से होती है पता है आप लोगों को? हाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑन सीडी और हाउ यू आर एबल टू रीड द सीडी? यस, किसी को पता है कैसे रीडी पर? सर Yes, 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 you're right. Okay, what they are using? They are using laser, and for laser, what you are using? You are using this dual nature. For this dual nature, what happens? They are going to divide your light energy in two parts, two different parts, and that's why what happens? You are able to read and write for both actions. They are using the different frequencies, and then you are going to able to read or write. Anyone know about this photoelectric effect? Where you are using this photoelectric effect? Everyone who is using right now. Photoelectric effect. सोलर सेल Solar cells. और कहाँ पर होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज? डिस्प्लेस। और बोले यार, बात करो बात करो बात करो। यू आर नॉट रॉन्ग, यू नो एवरीथिंग। रिमेंबर दिस, फिजिक्स क्या है आपका? सराउंडिंग में आपका जो भी मैटर्स है उस पर आप स्टडी करते हो। बट व्हाट हैपन, हम डरते हैं। अभी तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। We need to talk. Whatever you know about the physics, what are the things you know, that we need to discuss. Otherwise, what happen? You know everything, but what happen? You are not able to discuss कि नहीं यार मैं बात करूंगा तो कैसे होगा, कोई हंसेंगे, ये बात करेंगे। अभी तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास 100% नॉलेज है, लेकिन हम उस नॉलेज को हम क्या नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। उस पर बात करने को हम बहुत बार डरते हैं। सो यू नीड टू थिंक कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे कहा कि कैमरा में कहीं ना कहीं पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते समय हम बहुत बार यूज करते हैं। तो इस तरह से ये आपकी कहीं ना कहीं पर ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट, क्वांटम मीन्स दैट इज द क्वांटा, कि लाइट का जहां पर भी हम यूज कर रहे हैं वहां पर क्या करते हैं हम, उसके पार्टिकल्स के बारे में, या हम जो कहते हैं कि दैट इज यू आर गोइंग टू से फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, वेव फंक्शन, वॉट एवर आई एम ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हियर, what are the image you are observing on your screen. आप जो अभी ये इमेज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं स्क्रीन पर, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? कहीं ना कहीं पर इंटरनेट, आप कह रहे कि यू आर यूजिंग द इंटरनेट, बट ओनली यू आर यूजिंग द इंटरनेट, एंड व्हाट हैपन, you are going to transmit the data in the form of phase velocity और group velocity. मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपके कान तक कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? एक फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, कहीं ना कहीं ये जो मैं वर्ड्स बात कर रहा हूँ, ये वर्ड्स क्या कर रहा है, वर्ड्स को एक क्वांटा फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है कि दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यू आर गोइंग टू से कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तैयार हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम कहीं ना कहीं पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वो ट्रांसमिट किया वाले इलेक्ट्रो रेडिएशंस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या हो रहे हैं आपके पास रिसीव हो रहा है। दैट्स व्हाई you are able to read
और राइट समथिंग। ओके, तो ये कहीं ना कहीं पर क्वांटम फिजिक्स आपके हर एक ब्रांच में, ईएक्सटी से आईटी, मैकेनिकल, सिविल, हर जगह पर मैकेनिकल और ईएक्सटी से स्टूडेंट कहाँ पर यूज करेंगे इसे? हेलो, एनीवन इज देयर? Yes, sir. हेलो Yes, sir. यस, Yes, sir. मैकेनिकल और ईएक्सटी से ऐसे फील हो रहा है कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ और कोई वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे लग रहा है। सो ईएक्सटी से और मैकेनिकल स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज करेंगे इस क्वांटम का? आपको जरूरत है? यस, और यू डोंट नो एनीथिंग? Sir, the concept of photoelectric we used in burglar alarm, a light detector, sorry. यस, बल्गर अलार्म, आप में जो कैमरा से इमेज रिसीव करते हो, कहीं ना कहीं पर फोटो इफेक्ट के बेसिस पर ही होता है ईएक्सटीसी। लेकिन मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स कहाँ पर यूज करेंगे, मुझे बोलो। मैकेनिकल स्टूडेंट एखादा बेसिक यूज कहीं पर आपको दिखाई देता है, रोज के लाइफ में आप यूज करते हैं, रोज के लाइफ में आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स, वेर यू आर यूजिंग दिस वन? अरे यार कोई तो एक बात करो, ऐसे खामोश रहेंगे तो कैसा रहेगा? यस, कहीं ना कहीं पर देखते होगे ये फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, वेव फंक्शन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन आपको पता है कहां पर यूज होता है? मैकेनिकल। डम है क्या सब मैकेनिकल स्टूडेंट्स? हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ सर। Yes, sir. कहाँ पर Yes, यूज sir. होता है? कहाँ पर यूज होता है? कुछ बोलो तो सही यार, कुछ इतना खामोश रहेंगे तो कैसे रहेगा? हाँ? दिस वन, आपका ये जो लोकल का ट्रांसमिशन चलता है, लोकल ट्रेन्स का, लोकल ट्रेन के ट्रांसमिशन या उनको जो कंट्रोलिंग होता है कहीं ना कहीं पर किसी एक स्टेशन से, या हर एक स्टेशन जो कंट्रोल करता है आपके लोकल का जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग होता है, जो कहीं ना कहीं पर आपके वेव फंक्शन के बेसिस के ऊपर जो होता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकल चलती है, एक ट्रैक पर पर्टिकुलरली लोकल चलती है, तो आप दूर से भी कहीं ना कहीं पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर लोकल आ रही है, जा रही है उस पर। तो उस पे बेसिस पर कहीं ना कहीं पर हमें ये क्वांटम का पार्ट आपको वहां पर मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन मॉडल आपको जो देखना है, दैट इज द क्रिस्टलोग्राफी। कहां पर यूज होता है क्रिस्टलोग्राफी? हर्ड अबाउट दिस वन? क्रिस्टलोग्राफी ये पहली बार सुन रहे नाम? केमिस्ट्री में पहली बार? हाँ सर, हुआ है सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको लगता है आप इंजीनियरिंग में आ रहे हैं और आपको क्रिस्टलोग्राफी की जरूरत रहेगी? आईटी स्टूडेंट बेसिकली? यस, एनी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट? Yes, sir. हेलो, हाँ, कहाँ पर यूज होगा यार? लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड रहता है ना, पीसीबी वाला, उसमें शायद लगे। पीसीबी वाला। आजकल आप मोबाइल परचेस करते समय क्या देखते हैं? स्क्रीन के बारे में क्या समझते हैं मोबाइल परचेस करते समय? Small crystal particles are there. एमोलेड Liquid सर, एमोलेड। liquid crystal display. हाँ, कि अभी ये कौन Sir, resolution. रिजोल्यूशन। और ये स्क्रीन के बारे में क्या? स्क्रीन आपकी खराब होती है, उसको सेव करने के लिए कौन सा यूज होता है? क्या देखते हैं आप? टेम्पर्ड ग्लास। व्हाट हैपन यू आर सेइंग? दैट इज टेम्पर्ड ग्लास। आप उसको देखा है आपने कभी? वो ऊपर का एक स्क्रीन निकालते हैं आप, आजकल मार्केट पे 60 रुपीज 50 रुपीज में स्क्रीन मिलता है, कि क्या स्क्रीन गार्ड आप उसे कहते हैं? यस, व्हाट यू आर सेइंग? यू आर सेइंग दैट इज द स्क्रीन गार्ड। स्क्रीन गार्ड क्यों यूज होता है और उसका और क्रिस्टलोग्राफी का क्या रिलेशन है? सर मॉलिक्यूलर डिफरेंस उसमें बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत हार्ड रहता है वो स्क्रीन। अच्छा, इसलिए बहुत हार्ड रहता है वो स्क्रीन। और कुछ वो किससे, ये मतलब आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं सभी, आप
Okay, what are the structures you are observing? That is, you are going to see crystallography. Crystallography means whatever you are constructing, कि आप जो भी मटेरियल्स देखते हैं, मटेरियल्स कौन से टाइप में देखते हैं आप? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब आप जो भी सॉलिड मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, सॉलिड मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पर आपके मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो, आईटी स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स हो, केमिकल स्टूडेंट्स हो, सिविल स्टूडेंट्स, everyone is constructing something. And if you want to know that material strength, उस material strength आपको देखनी है, तो what we need to think about the crystallography. Electronic students, आप जो आप सुनते हैं, अभी कौन से टाइप के आप आईटी स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, आजकल आप कौन से पीसी आज यूज कर रहे हैं, कौन से एरा में यूज कर रहे हैं? यस, क्या सर? पीसी कौन से यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स कौन से यूज कर रहे हैं? i5 10th generation, i7, AMD Ryzen. Yes, AMD i5 i7, whatever you are saying. This is the simple. कैसे i5 i7 i8 silicon chip। Yes, you are using silicon chips. और ये silicon chips में क्या होता है, एक छोटा सा silicon chip means it is having lakhs of components. What happens? It having lakhs of components, or lakhs of components किससे create किस जाते हैं? These constructed using your crystallographic theory. Okay, this constructed using the crystallographic theory, and that's why this crystallographic theory is very important. और इससे कहीं ना कहीं पर आपके केमिकल इंजीनियरिंग से कहीं ना कहीं पर आपको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका फिजिक्स पार्ट जो आपको देखना है, इसका फिजिक्स पार्ट जो आपको देखना है कि इसका यूनिट सेल किस तरह से होता है, उसका कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको किस तरह से उसका ऑब्जर्वेशन मिलता है, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। आजकल हम कोरोना को भी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। आपने एंटीजन टेस्ट देखा होगा, देखा आपने एंटीजन टेस्ट? हाँ सर, खाली वीडियो में। एंटीजन टेस्ट में क्या करते हैं, दे आर यूजिंग वन स्ट्रिप। उस स्ट्रिप पर कहीं ना कहीं पर आपको क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर यूज किया जाता है कि छोटी सी स्ट्रिप होती है, उसमें आपका एक स्वैब दिया जाता है, उस स्वैब को क्या किया जाता है, स्वैब को लिक्विड में इंसर्ट किया जाता है, एंड दैट लिक्विड इज गोइंग टू बी पोर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एंटीजन टेस्ट किट। और एंटीजन किट पर आप जैसे ही पोर्ड करते हैं, क्या होता है कि इट इज गोइंग टू डेवलप सम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वहां पर जो होता है कि आपसे जो भी आपने मटेरियल यूज किया है, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी चेंज, एंड व्हाट हैपन, यू आर एबल टू गेट द रिजल्ट। कि आपने उसमें देखा होगा कि जो स्ट्रिप वहां पर डेवलप होती है, जो स्ट्रिप वहां पर डेवलप होती है, जब आप वहां पर देखा होगा, कुछ लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, एक ब्लू फेंट लाइन या डार्क लाइन वहां पर डेवलप होती है। उस डार्क लाइन और फेंट लाइन से क्या होता है कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट यू आर कोरोना पॉजिटिव और नॉट। That is possible with the crystallography. So remember this one, crystallography is important everywhere for electronic students, for IT students. IT student आप कहीं ना कहीं पर i5 i7 ये जो भी जनरेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पर ये क्रिस्टलोग्राफी के सिवा आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। Then you are saying about the mechanical students. Mechanical student आप जब भी कहीं ना कहीं पर materials आप जो कहते हैं कि you are using the metals, and in that metal, if you know the perfect structure of that material, what happens? You are able to make it perfect material. So perfect developing missiles, different missiles, those are able to move up to thousands of kilometers. How it is possible? That is possible with the help of metals. और metals में कहीं ना कहीं पर आपको क्या देखना पड़ेगा? That is, we need to observe the crystallographic structure. क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसी क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मटेरियल प्रॉपर्टी, एंड दैट मटेरियल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डिपेंड्स अपॉन दिस क्रिस्टलोग्राफी। केमिकल स्टूडेंट के लिए ये कहीं ना कहीं पर ब्रैक्स लॉ,
डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूजिंग डिफ्रैक्टोमीटर, आपको कहीं ना कहीं पर ये डिफ्रैक्टोमीटर जो है उससे हर केमिकल का कंपोजिशन किस तरह से है ये कहीं ना कहीं पर आप ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टलोग्राफी. So for chemical student, IT student, civil student, everyone need this crystallography. Now the next one model, that is the model 3. आप इस model 3 में क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं? That is the semiconductor physics. तो civil student आपको कहीं ना कहीं पे हेलो हेलो सेमीकंडक्टर फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को? डू यू नीड दिस सेमीकंडक्टर फिजिक्स? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yeah, yes, Yes, sir. In हाँ, building a but PC, computer, chip. कंप्यूटर्स तो कहीं ना कहीं पर आईटी ब्रांच का हो गया. बट व्हाट आई एम आस्किंग द सिविल स्टूडेंट, डू यू नीड दिस सेमीकंडक्टर फिजिक्स? Do you require this semiconductor physics? हाँ ना, कुछ ना कुछ सोचो, कुछ ना कुछ बात करो. वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है सिर्फ ये. यस सर. कैसे? वही तो बात पूछना है मेरे को, किस तरह से यूज होता है आजकल इसका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का? आज बिल्डिंग्स की साइज क्या हो गई? बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? बुर्ज खलीफा देखा है, 101 टावर देखा है आपने, उसकी हाइट कितनी है? यस सिविल स्टूडेंट्स. मॉडर्न मशीनरीज की वजह से. Yes, what happened? We are going to use the sensor technologies. We are going to use the sensor technologies to control this building. Okay, आपने कुछ बिल्डिंग्स आप ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि 101 ओ टावर ताइवान में जो बना हुआ है, चाइना का एक टावर जो है 101 टावर, उसमें शंघाई टावर क्या हुआ है कि शंघाई टावर, ये शंघाई टावर बोल सकते हैं, कोई भी बुर्ज खलीफा बोल सकते हैं. ये जो बिल्डिंग का कंप्लीटली कंट्रोलिंग जो है, दैट इज बेसिकली ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. दैट इज बेसिकली ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. उसमें आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते समय क्या कर रहे हैं? दे आर इंसर्टिंग द सेंसर्स इनसाइड दिस building structure, and that's why their semiconductor physics is very important there also. Okay, semiconductor physics वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा important है. Okay, anyone know about this intrinsic and extrinsic semiconductor? 12th में पढ़ा है ना आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Natural and man-made. Yes. Natural and man-made. Man-made. Which one is the natural? Which one is natural? Intrinsic. Semiconductor. Intrinsic. Intrinsic is natural or man-made? Yeah. Natural. And what about? Okay. What is meant by intrinsic semiconductor? Exactly how you are able to define this intrinsic semiconductor? The poor form of Oh, impurity semiconductor. means, yes, it is a pure form of semiconductor. That's why we are able to say it is an intrinsic semiconductor. Now, what is extrinsic semiconductor? Impurities are added to make it conductive. Okay. What happened? You are going to add the impurities. You are going to add the impurities. That's why we are able to say it is an extrinsic semiconductor. What is its use? इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज कहां पर होता है? कुछ कंपोनेंट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए थे, याद है कहां पर यूज किया था आपने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? Diode. पीएन जंक्शन डायोड में Diode. पीएन जंक्शन डायोड. Amplifier. कौन सा होता है? पी एंड एन टाइप मटेरियल जो क्या होता है?
that is nothing but your extrinsic semiconductor. That is nothing but extrinsic semiconductor से आपको कहीं ना कहीं पर P type and N type का material use करता है. And what happen? You are able to construct that is PN diode. और कहाँ पर यूज किया था? एम्पलीफायर एम्पलीफायर मतलब एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट था? एम्पलीफायर मतलब कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? आपने पढ़ा है? मेनली तो सारा पीसीबी में यूज होता है ना. पीसीबी में ही यूज होता है ना मेनली तो. पीसीबी मतलब क्या? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब पीसीबी होता है. लेकिन पीसीबी के अंदर कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं? वन ऑफ द पार्ट इज पीएन जंक्शन डायोड. दूसरा आपने क्या पढ़ा था? ट्रांजिस्टर. ओके. रजिस्टर में कहीं ना कहीं पर आप कार्बन मटेरियल यूज करते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू यूज semiconductor material. What happens? You are going to use carbon material for resistance. ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा. जो एम्पलीफायर अभी कह रहे थे, मेरा दोस्त कोई तो बात करते समय बोल रहा था कि दे आर यूजिंग द एम्पलीफायर्स मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर मटेरियल. ट्रांजिस्टर्स. ओके. कहीं ना कहीं पर एक ट्रांजिस्टर नाम का एक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो यूज करते हैं. हम किससे? We are able to construct using this semiconductor physics. आपने जो अभी आपने कहा कि R5 जनरेशन, R6 जनरेशन या अभी कहीं ना कहीं पर AMD प्रोसेसर आप जो कह रहे हैं, AMD प्रोसेसर क्या है? कहीं ना कहीं पर क्रिस्टलोग्राफी पर आप कह रहे हैं कि it is nothing but on the basis of crystallography. But what we need to think for this one, we need to use somewhere the semiconductor materials. Okay. आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आप जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, what we need to use semiconductor material. जैसे देखो नीचे application of semiconductor में क्या दिखा है? मेंशन किया है लास्ट लाइन में. Sir, the screen Application is of black. semiconductor. The screen black आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा. Screen is Yes, sir. black now. Yes sir, it is not visible. Okay, that's Yes, sir. not visible. It is not visible. Okay. Yes, Just sir. a minute. Okay, just a minute. Just a minute. Sir. I will try to share again. Share screen, start screen. Now? Yes, sir. Are visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You Yes, just sir. need to tell me if you are having any problem. You need to share. Otherwise, what happen? I'm talking, and then you're not able to get anything. Okay, sir. Remember this one. You need to talk. पहले की तो देखा ही नहीं. पहले की देखी नहीं अपनी? ठीक है, 1 मिनट में दिखाता हूँ. पहले यूनिट का था, देखो मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 का देखो, ये पार्ट है आपका. क्या है? दैट इज द, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Right? यस हाँ, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट देखिए. फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, वेव फंक्शन, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं पर देखने के लिए मिलते हैं आपके पार्ट 1 में. नेक्स्ट वन जो मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या पार्ट देखने के लिए मिलेगा? सॉरी, मॉड्यूल 2 में आपको क्रिस्टलोग्राफी का पार्ट दिखाई दे रहा है. क्रिस्टल फिजिक्स, देन एस यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आपने ये पार्ट किया है ना थोड़ा बहुत? यस सर, नो? क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट किए या नहीं आपने? Yes sir. मिलर इंडाइसिस आई थिंक सीबीएसई पैटर्न को था और स्टेट बोर्ड पैटर्न को नहीं था. आई थिंक, एम आई राइट और रॉन्ग? सर फर्स्ट लेसन में था. स्टेट बोर्ड में था सर. फर्स्ट क्वांटम फिजिक्स का और क्रिस्टलोग्राफी में था ना? ओके. ये सेमीकंडक्टर का मॉड्यूल 3 जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए नीचे क्या दिखाई दे रहा है? एप्लीकेशंस. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? एलईडी, जीनर डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल. एलईडी, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल एंड जीनर डायोड. ये कहीं ना कहीं पर ऑल दिस मटेरियल्स, आजकल आप जो कह रहे हैं कि यू आर यूजिंग सोलर पैनल्स, दिस सोलर पैनल्स एक्चुअली इज कंस्ट्रक्ट यूजिंग समवेयर द फोटो, आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल से कंस्ट्रक्ट कर रहा है. नाउडेज दे आर डेवलपिंग द पेंट्स आल्सो. ये फोटोवोल्टाइक सेल जो आप कह रहे हैं कि ये सोलर सेल जो कह रहे हैं कि उन्होंने पेंट इस तरह से डेवलप किया है सेमीकंडक्टर मटेरियल से
कि दे आल्सो दिस पेंट आल्सो, आपके घर के दीवार पर जो पेंट, बिल्डिंग को पेंट लगा है, वो पेंट भी कहीं ना कहीं पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का कंस्ट्रक्ट करे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से डेवलप करे, एंड दैट्स व्हाई योर बिल्डिंग इज वन ऑफ द सोर्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So everywhere the semiconductor material is important. So remember this one, semiconductor physics is one of the important topic in engineering nowadays because we want to develop different applications. Okay, जिसे आप कहते हैं homemade applications जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन से homemade applications है जिसमें आपको semiconductor physics दिखाई देता है? Yes, आपको जो कहीं ना कहीं पर ऑटोमेशन जो आप कहते हैं उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स है कि नहीं? देखिए, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं आप लोग, वॉशिंग मशीन में कई सेमीकंडक्टर का है यूज? यस सर. यस, कैसे यूज होता है उसमें कुछ याद? अंदर का प्लेटिंग जो होता है वो, जो ऑटोमेशन पेपर हम जो उसमें कहते हैं कि हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कहते हैं, या आप जो कह रहे हैं कि जैसे आप R5 I6 कह रहे हैं, उसी तरह से आपके मशीन्स में, वॉशिंग मशीन में एक कहीं ना कहीं पर माइक्रो कंट्रोलर होता है. माइक्रो कंट्रोलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, व्हाट आर कंपोनेंट्स यू आर यूजिंग, ऑल दीज आर नियर अबाउट मेड ऑफ यूजिंग the semiconductor material, semiconductor materials. तो यहाँ पर आपका एक वॉशिंग मशीन का, उसके बाद और दूसरे कौन से एप्लीकेशन में आपको देखते हैं जहां पर भी वर्ड आता है? होम थिएटर, रेफ्रिजरेटर, LED bulbs. एलईडी बल्ब, जहां जहां पर भी स्मार्ट वर्ड आएगा, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट एसी आप कहते हैं, सुना है आप लोगों ने? स्मार्ट एसी क्यों कहते हैं आप? स्मार्ट एसी, व्हाई यू आर सेइंग स्मार्ट एसी? और उसके अंदर तो पूरा मैक्रो. यस, माइक्रो क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, एंड दैट माइक्रो कंट्रोलर्स आर मेड अप ऑफ दिस semiconductor physics. That's why we are able to say these things are smart things. So remember this word, smart things रहेंगे, ठीक है? उसके बाद ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का इसका आपको क्या डिस्कस करना है? आपको हम सोचते हैं कि ये जो प्रीरिक्विजिट्स जो आपको यहाँ पर मेंशन किए कि यू नो अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स. आपको पता है एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो, यस, टू मूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बैंड टू अनदर. सर किसी सब्सटेंस में जब बहुत सारे एटम साथ में आते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के साथ में ऐसे एनर्जी बनती है. हाँ, कौन से बॉन्ड होते हैं? लास्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं आप? वैलेंस बैंड. यस, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो कहीं ना कहीं पर गैप देखने के लिए मिलता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कहीं ना कहीं पर एक आपको गैप देखने के लिए मिलता है, दैट इज नोन एज एन एनर्जी बैंड. आप ये कहीं ना कहीं पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, उसे आप क्या कह रहे हैं? दैट इज द फॉरबिडन बैंड, या आप उसे कहीं ना कहीं पर फॉरबिडन बैंड कहते हैं. ये नीचे बैंड को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड. ऊपर के बैंड को क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड. तो इस तरह से आपको पता होगा कि वी आर एबल टू सी दैट इज द बैंड्स, और आप वहां पर कहते हैं कि एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर कौन से मटेरियल है? यस, माइका. कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, तीनों में डिफरेंस क्या है? एनर्जी. 12th में बहुत ज्यादा स्टडी किया था इस पर. यस, क्या होता है? एनर्जी बैंड के फॉर्म में आप बात कर सकते हो उसको. तीनों का एनर्जी बैंड अलग अलग रहता है. यस, तीनों का एनर्जी बैंड क्या होता है? अलग अलग होता है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा? ये VB मतलब क्या है? वैलेंस बैंड. ये क्या है आपका? कंडक्शन बैंड. और ये गैप जो रहता है इसे आप क्या कहते हैं? इसे फॉरबिडन बैंड. एनर्जी गैप.
यस, ये फॉरवर्ड बैंड। कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस तरह से होता है? Overlap each other. Yes, they are overlapping with each other. They are close, very close. That's why if you are going to apply a small current also, what happens? That current is able to, if you are going to apply small energy, what happens? We are going to observe that valence band के जो इलेक्ट्रॉन से वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड में चले जाता है, and that's why you are able to observe the current flow. सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होता है? Very far. The distance is very far. वेरी फार। ये फॉरबिडन बैंड जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके, या फॉरबिडन बैंड जो देख रहे हैं, ये फॉरबिडन बैंड क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉरबिडन बैंड होता है। दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि आप वहां पर देखते कि वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आप वहां पर करंट फ्लो क्या नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते। ओके, तो ये आपका क्या है कि वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में कहीं ना कहीं पर आप जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में Medium. सेमीकंडक्टर में मीडियम होता है। वैलेंस बैंड ऑफ कंडक्शन बैंड क्या होता है, मीडियम होता है। कि जैसे आप देखते थे कि वैलेंस आपके कंडक्टर में थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करते, वहां पर क्या हो सकता था, करंट फ्लो हो सकता था। बट इन दिस केस वी नीड टू अप्लाई सम मॉडरेट एनर्जी, we need to apply some moderate energy, and then only what happen, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आपके करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। दैट इज नथिंग बट द सेमीकंडक्टर। इनको रेजिस्टेंस फॉर्म में भी आपको डिस्कस किया था आपने। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। और आपके सेमीकंडक्टर का मटेरियल का रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, आपका एक मिनिमम एक मॉडरेट रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पार्ट में आपको ये मालूम रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं ये इतना पार्ट आपको कहीं ना कहीं पर बेसिकली आपने डिस्कस किया है 11 12 10th 11 12th में, कहीं ना कहीं पर ये भी पार्ट आपने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम उसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आपके लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में। ओके, सो ये है आपका पार्ट कौन सा, मॉडल 3 पार्ट आप देखते हैं। अभी मॉडल 4 इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, सुना है आपने, ये क्या है, कहां पर आपने डिस्कस किया था ये? यस सर, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यस, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स, कहीं ना कहीं पर वेव ऑप्टिक्स में आपने किया था। इंटरफेरेंस इन थिन, किसी को पता है इंटरफेरेंस मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? कहां पर दो लाइट वेव्स, तो जब 2 लाइट वेव कंबाइन करते हैं तो ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट के पैटर्न्स बनते हैं। यस, अगर हम वेव फॉर्म में इसको कहते हैं कि लाइट इज नथिंग बट क्या कहते हैं हम उसे, वेव्स कहते हैं। अभी ये एक वेव है और ये एक वेव है। ओके, इन दोनों की एडिशन मतलब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पर आपका इसका एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों को लाइट एनर्जी को दोनों को एक जगह पर ऐड कर दिया, ये एक वेव फॉर्म और ये दो वेव फॉर्म, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका क्या होता है, एनर्जी, लाइट एनर्जी कहीं ना कहीं पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। इसके लिए भी एक रूल जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइट का, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये थ्रस्ट देख रहे हैं, ये थ्रस्ट देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, दोनों सेम फेज में। आप स्क्रीन देख रहे हैं ना? हेलो हेलो, यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन पर मैं जो मार्क कर रहा हूँ Yes. दिखाई दे रहा है हाँ, ना? हाँ सर, ये आपकी ये वेवफॉर्म 1 और वेवफॉर्म 2 जो दिखाई दे रहा है, ये वेवफॉर्म 1 और वेवफॉर्म 2, ये दोनों क्या है, दे आर इन सेम फेज। ओके, ये फेज में है, ये भी सेम फेज में है। इफ दिस सेम, दे आर इन सेम फेज, इसे कौन सा इंटरफेरेंस कहते हैं, याद है कुछ? दोनों की एडिशन कब हो सकती है, कौन सा दोनों वेव इंटरफेरेंस कोहेरेंट हो, नाम दिया? कौन सा? constructive, Yes, that is known as an constructive interference. If two light waves are out of phase with each other, जैसे कि अभी सपोज ये इस तरह से और दूसरा वेवफॉर्म किस तरह से, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, ये एक वेवफॉर्म 1 and 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। yes, what happen, it is going to develop
एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे ये एक दूसरे के हो रहे तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वेव फॉर्म है और ये कैसा है, नेगेटिव वेव फॉर्म है नीचे का। ये दोनों वेव फॉर्म्स क्या कर देंगे, माइनस हो जाएंगे एंड व्हाट्स हैपन, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंड नेगेटिव रिजल्ट, जीरो रिजल्ट, मतलब ब्लैक रिंग आपका कहीं ना कहीं पर डेवलप होगा। दैट्स व्हाई दिस इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले इसमें क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आते इसमें हम कहीं ना कहीं पर क्या बात कर रहे हैं, इसमें वेव फ्रंट्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, क्या याद है कुछ, क्या इस प्रिंसिपल में किसी को याद है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो वेव फ्रंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारे लाइट सोर्स सेम टाइम पे आते हैं। यस, जस्ट लाइक एग्जांपल, आप रेगुलर लाइफ में देखते हैं, एग्जांपल टॉर्च ऑन किया आप लोगों ने, टॉर्च ऑन किया करते क्या होता है, हमने किसी दीवार पर अगर फोकस करते हैं तो क्या होता है, एक स्मॉल लाइट वहां पर आपको एक वेव फ्रंट दिखाई देता है। किसी न किसी स्क्रीन के ऊपर हम उस लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, एक वेव फ्रंट वहां पर तैयार होता है। अगर जैसे जैसे सर रिपल्स जो पॉइंट में आते हैं, पॉइंट के रिपल्स वो भी तो वेव फ्रंट है ना। यस, कहीं ना कहीं पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर एनर्जी ट्रांसफर करते हुए जाते हैं। ओके, एनर्जी ट्रांसफर करते हुए जाते हैं, एक पॉइंट दूसरे को, दूसरा पॉइंट तीसरे को, एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड वेव फ्रंट। ओके, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हम क्या देखते हुए जाते हैं, एक वेव फ्रंट। हम उसको कहीं ना कहीं पर आगे, जैसे कि इंटरफेरेंस इन डिविजन्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये थिकनेस ऑफ ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें कहीं ना कहीं पर हम उसका डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बोलिए कि आप यहाँ पर जो पॉइंट सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? यस, याद है कुछ रिफ्लेक्शन पार्ट? सर रिफ्लेक्शन मतलब जब एक लाइट वेव किसी सरफेस को टकराएगी तो उतने एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, that is reflection. And when light travels from rare to denser medium or from denser to rare medium, it changes its direction quite, that is refraction. Where you are using the reflected image? Reflected को कहाँ सब मिरर में अपनी इमेज देखना, that is reflection. Yes, yes, मिरर में इमेज जो देखते हैं that is the reflection and refraction. सर जैसे समझिए एक ग्लास ऑफ वाटर टाइप उसमें पेंसिल लगाया हुआ है, yes, that is the refracted image आप कह सकते हैं। ओके, आप इसके एप्लीकेशंस देख रहे हैं क्या? व्हाट इज द एप्लीकेशंस? कि जैसे आप EXTC वाले स्टूडेंट या IT स्टूडेंट सोचेंगे कि वेयर आई नीड टू यूज दिस वन। यस, EXTC IT स्टूडेंट्स, सिविल स्टूडेंट कहाँ यूज करेंगे इसे? यस, रिले सर्किट। कौन से? रिले सर्किट। और yes, we need to use, that is in optical fiber। जो आप कह रहे हैं कि आजकल कहीं ना कहीं पर I am able to transmit the signal from one place to another place। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि what happen, you are going to see कि कहीं ना कहीं पर आपकी जो इंटरनेट की रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन स्पीड कहीं ना कहीं पर जो इंक्रीज हो रही है, which is based on this interference phenomena। कहीं ना कहीं पर ये इंटरफेरेंस फेनोमेनन की वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है, एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ समवेयर ऑप्टिकल फाइबर्स, लेजर्स। ओके, वेयर यू आर यूजिंग, जहां जहां पर आप लाइट और ग्लास मटेरियल आप जहां पर यूज कर रहे हैं, देयर वी नीड टू यूज दिस इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनिकल वाले आप लोग, जो मैंने अभी आपको यूनिट नंबर 2 में जो कहा था मैंने कि यू आर यूजिंग, कहीं ना कहीं पर यूनिट 1 में भी कहा था आपको कि कहीं ना कहीं पर आप यूज कर रहे क्वांटम का, और इस क्वांटम का रिलेशन कहीं ना कहीं पर इंटरफेरेंस के साथ करते हैं। दैट्स व्हाई आप जो कहीं ना कहीं पर ट्रेन्स का जो कहीं ना कहीं पर कंट्रोलिंग होता है, ट्रैफिक कंट्रोलिंग जो होता है, वो ट्रेन्स कहीं ना कहीं पर क्या करते हैं, कुछ वेव्स जनरेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं, एंड दैट फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज गोइंग टू बी
ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरफेरेंस कंसेप्ट। और उसी के ऊपर कहीं ना कहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको ये इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन आपके आईटी ब्रांच में देखने के लिए मिलता है। केमिकल वाले जो आप देख रहे कि यू आर गोइंग टू से आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व केमिकल्स कि विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, या कहीं ना कहीं पर आप जो डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और इन ब्रांचेस में कहीं ना कहीं पर इसका यूज होता है कि मटेरियल आइडेंटिफिकेशन के प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं पर आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वी नीड टू यूज समवेयर दिस इंटरफेरेंस पार्ट। ओके, यहाँ पर एप्लीकेशंस क्या क्या दिखाई दे रहे हैं कि दैट डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ वेरी थीन वायर। ओके, मैकेनिकल स्टूडेंट्स, आपको थीन वायर की माइक्रो नैनोज में आपको जो आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि वी नीड टू यूज दिस इंटरफेरेंस कंसेप्ट। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सुना है आप लोगों ने कहीं पर? यस यस, कहाँ पर सुना है? 11th में शायद। लास्ट ईयर के फिजिक्स मीडियम, लास्ट ईयर के फिजिक्स में कहाँ पर सुना रे था आप ऑप्टिक्स, लोगों ने? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में देखा था। अच्छा, इस इंटरफेरेंस का कंसेप्ट आपकी डेली लाइफ से कहीं पर रिलेटेड है? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे? हाँ सर, रिलेटेड है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसमें लाइट की स्पीड स्लो होगी, तो ऐसे फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इंटरफेरेंस होने के चांसेस है। इसका इफेक्ट आप घर में कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं? कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं आप आपके घर में? किसका इफेक्ट सर? आपके घर में आप जब मोबाइल यूज करते हैं, अगर किसी डार्क एरिया में चले जाए या वाटर कंटेंट जहां पर मैक्सिमम अवेलेबल है उस एरिया में अगर चले जाते हैं, तो क्या व्हाट सर वो मोबाइल के अंदर सेंसर टू ऑब्जर्व दैट कि नहीं, आई एम जस्ट सेइंग वन एग्जांपल कि व्हाट हैपन कि इफ समवेयर द वाटर इज मोर, वाटर कंटेंट्स आर मोर, if you are using mobile there, you are not able to receive the signal strength maximumly। मगर जहां पर ड्राई एरिया में आप चले जाते हैं वहां पर सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। कि जैसे कि यू नो, एज यू नो, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, और जहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, increase होगा। and if the refractive index is going to increase, what happen, it is going to absorb that signal energy, and you are not able to receive the mobile signal strength perfectly। इसका मतलब है आप जहां पर भी ड्राई पोजीशन में होगे वहां पर चले जाइए, आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस वहां पर ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरफेरेंस मॉडल 4 में। देन आपको जाना है यूनिट नंबर 5 में, दैट इज सुपर कंडक्टर एंड सुपर कैपेसिटर। क्या है भाई ये सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कैपेसिटर? यस, हेलो सर हाइपर लूप में सर हेलो, यस हाइपर लूप, उसमें सुपर कंडक्टर यूज होता है। सुपर कंडक्टर यूज क्या होता है, क्या सुपर कंडक्टर? स्पीड बढ़ जाता है उसमें। ऐसा करंट इसकी रेजिस्टेंस जीरो हो। What is, yes, as a material which having material zero, you are going to use say कि conductor में resistance आप zero कहते हैं, but what happen in conductors we are going to observe some minimum resistance, और उस minimum resistance का effect आजकल आप देख रहे हैं कहाँ पर यूज होता है, you are going to lose the energy। आप लाइट बिल पे करते समय आप देखिए, लाइट बिल पे करते समय you are paying some लॉस ऑफ एनर्जी का बिल पे करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पर वहां पर एनर्जी लीकेज होती है, एनर्जी लीकेज होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आजकल हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप कहीं ना कहीं पर अभी इस डेवलपिंग पार्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा है सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर्स की, जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एंड इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज जीरो, व्हाट हैपन, you are able to transmit the data or transmit the current or whatever the information you are having, that is at very high speed, that is with high speed, that we are going to say that is super
कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ऑप्टिकल फाइबर को भी आप देख सकते हैं कि इट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी आप कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बट व्हाट हैपन, we are going to observe some losses in optical fiber, but whereas in superconductors or supercapacitor, what happens, you are going to be observed that energy loss is minimum, or we are able to say zero in this particular superconductors. And that's why in many applications we require this one for to increase the speed for the transmission of data. कि जैसे आप कह रहे कि you are using 5G, 6G, 7G, कहीं ना कहीं पर आप ये जो 7G, 8G आप जो आप देखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पर इन मटेरियल्स का यूज होना जरूरी है कि दैट इज द सुपर कंडक्टर्स और सुपर कैपेसिटर्स का कहीं ना कहीं पर यूज होगा, तभी आपको कहीं ना कहीं पर क्या होगा, आपको यूज मिलेगा। दिस इज द मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज द इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें कहीं ना कहीं पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस Yes. Yes, sir. what is Yes, this sir. one? That this is the model number Yes, 6. sir. This is the engineering materials and applications. इसमें कहीं ना कहीं पर आप डिफरेंट मटेरियल्स, हर एक ब्रांच में कहीं ना कहीं पर जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं पर आपको डिस्कस करना है। एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, इन एवरी ब्रांच वी नीड दिस डिफरेंट मटेरियल्स, और इसी डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर कहीं ना कहीं पर हमारा क्या है, इंजीनियरिंग डिपेंडेंट है। एंड दैट्स वी नीड टू लर्न इन यूनिट नंबर 6। एंड आपका असेसमेंट जो होता है, इंटरनल असेसमेंट जो आप देख रहे हैं, किस बात पर दिखाई दे रहा है, असेसमेंट ऑफ क्लास टेस्ट 15 मार्क्स, जो मैंने पहले इसमें देखा था, ये कहीं ना कहीं पर किस तरह से होगा, दैट इज डिपेंड्स अपॉन कि पहले 15 मार्क्स का 40% पर, नेक्स्ट 35% पर सिलेबस पर, और उस पर कहीं ना कहीं पर आपका क्या होगा कि आपकी ये इंटरनल एग्जामिनेशन आपकी ऑब्जर्वेशन में मिलेगी। और देन एंड सेमेस्टर एग्जाम में ये आपको कहीं ना कहीं पर मेंशन किया। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा कि उसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाउ टू डू असाइनमेंट्स। दीज आर द बुक्स which we need to use in our engineering physics। कि जैसे अभी ये एक टेक्स्ट बुक ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स, यस चार्टा पब्लिकेशन का ये बुक भी आप यूज कर सकते हैं। ऑप्टिक्स के लिए जो आप देख रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं पर टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिक्स, कि आप इफ यू वांट टू डिस्कस दिस ऑप्टिक्स इन डिटेल, देन वी नीड टू यूज दिस फंडामेंटल ऑप्टिक्स। मैग्रा हिल का आपका अवेलेबल है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए आपको ये रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, ये देख लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स, देन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें कहीं ना कहीं पर आपको डिटेल्स में आपको सिलेबस देखने के लिए मिल सकता। देन इज द प्रैक्टिकल टीचिंग स्कीम। प्रैक्टिकल टीचिंग स्कीम में आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा, आपको वीकली 1 आवर का एक प्रैक्टिकल आपको रहेगा, उसका क्रेडिट है, पॉइंट क्रेडिट है। एंड और उसकी मार्किंग किस तरह से देखने के लिए मिलती है, लैबोरेटरी वर्क, एक्सपेरिमेंट एंड जनरल 10 मार्क्स है। और आपको एक बात याद रखनी है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, अरे इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज वी नीड ये प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज पब्लिक प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट, वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। आपको असाइनमेंट, रिटन असाइनमेंट नहीं है, बट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 10 मार्क्स का है ये प्रोजेक्ट। अभी तो हम एक साथ आ नहीं सकते हैं, लेकिन आप घर पर बैठकर कुछ न कुछ एक न्यू प्रोजेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअली करो या एक के साथ 2 मिलकर करो, जैसे भी करना है। इंडिविजुअली किया हुआ फिलहाल ठीक रहेगा। तो दिस प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज आपको कहीं ना करना है। आपको एक दूसरे के ग्रुप में, आप एक दूसरे के साथ में हो, तो कहीं ना कहीं पर आप जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड यू आर एबल टू choose one of the project, small basic project आपको देखना है। We don't require any modern project
we don't require to pay money to anyone. You need to prepare any small project that is going to develop your skills. Okay, कहीं ना कहीं पर आपने वैकेशन में कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश की होगी, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहीं ना कहीं पर ये प्रोजेक्ट का काम करना है. उसके लिए आपके पास 10 मार्क्स है. एंड देन अटेंडेंस, थ्योरी एंड ट्यूटोरियल के अटेंडेंस को आपको 5 मार्क्स रहेंगे. सो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल स्कीम का सिलेबस देखने के लिए मिलता है. These are the different experiments which are available. अभी हम देखते हैं उसे ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है. जिस हमें इंस्ट्रक्शंस हमें रिसीव हो गए उस बेसिस के ऊपर हम कहीं ना कहीं पर क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. So any doubts? No sir. No No, sir. थोड़ा बहुत तो भी कुछ ना कुछ समझ में आया आज हमने जो डिस्कशन किया. Yes, sir. Yes. अभी हम देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले, पहला हम मॉड्यूल 2 डिस्कस करने वाले. रिमेंबर दिस. Which model you are going to discuss? That is the crystallography. So read about this one, crystallography क्या है, क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? दिस मॉड्यूल 2 क्रिस्टलोग्राफी. Okay, sir. और आपकी अटेंडेंस क्या करनी है, आपको क्या करना है, आपको ग्रुप में एक फिजिक्स का एक डिफरेंट ग्रुप बना सकता है कोई? यस ऋषभ, एक इंजीनियरिंग फिजिक्स का ग्रुप बना दो और उसमें अटेंडेंस डाल दो. वॉइस क्लियर? Okay, sir. वीडियो ओके. C&D डिवीजन दोनों. Okay, sir. Okay. Okay. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. You too. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. You to take care.